Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 9. Today's topic is about the forecasting exchange rates. Dear students, as we have already discussed in lecture number 8 about the different types of exchange rates that are prevailing in different parts of the world. What were those? आप में से कोई बताएगा? What are the different types of exchange rate systems that are prevailing in different countries? Yes, number 1, fixed. Number 2, floating. Number 3, managed. And number 4 is pegged exchange rate systems. तो ये different exchange rate systems हैं जो कि prevail करते हैं. How to forecast them? अब जो next step है अब ये है कि हम इनको forecast कैसे करें. Forecast का मतलब ये है कि हम predict कैसे करें कि exchange rate जो है वो किस साइड पे जा रहा है. Many MNCs they are worried about or they are concerned about that they must be forecasting the exchange rates. This is very imperative because they want to do the international trade, and in order to do that they have to do this international they have to do this forecasting mechanism to be done in a proper way. So students, we shall start with the chapter objectives. To explain how firms can benefit from forecasting exchange rates, हम ये पढ़ेंगे कि firms को क्या फ़ायदा होता है when they forecast the exchange rate. हमें forecasting का क्या फ़ायदा होता है? Students, forecasting का मतलब क्या है? Forecasting का मतलब ये है कि we are going to predict or we are going to give certain prediction that it is going to happen in future on the basis of certain data which is with us. Most of the time जो forecasting होती है that is being done on the historical based data, और उसी से आप predict करते हो कि what is going to be the future pattern. फोरकास्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है इन ऑल दी फील्ड्स ऑफ बिजनेस, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो एचआर है. हमने एचआर में भी अपनी एचआर की फोरकास्ट करनी है, नीड्स फोरकास्ट करनी है. सिमिलरली वी वांट टू do certain forecasting of all the business operations and all the business functions. That is very imperative for any kind of a business organization. तो students, forecasting जो है वो बहुत important phenomena है और हम उसके बगैर business को आगे लेके नहीं चल सकते. And especially when we talk about the MNCs, forecasting the exchange rates is very important. तो हम इस chapter में क्या क्या पढ़ेंगे? We are going to explain how firms can benefit from forecasting exchange rates. To describe the common techniques used for forecasting, हम different methods of forecasting पढ़ेंगे कि कौन कौन से methods हैं which are being used for the forecasting purpose, and to explain how forecasting performance can be evaluated. और हम ये भी देखेंगे कि forecasting performance जो है उसको हम किस तरह से evaluate करेंगे, like हम उसको measure करके किस तरह से हम compare करेंगे कि whether we are going up to the mark or not. So these are the different objectives of our chapter. Why firms forecast exchange rates? अब firms को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो exchange rates को forecast करें? हमने different systems पढ़े हैं और हमने ये भी उसमें पढ़ा कि government जो है वो intervene करती है fixed के अंदर, floating के अंदर जो है वो free demand and supply forces से set होता है, and managed में किसी हद तक government का influence है, और pegged में you peg it to different currency or some unit of some other unit of certain product जिसके साथ आपने अपनी करेंसी को पैक करना है. तो हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है? What is the need or why do firms forecast exchange rates? MNCs need exchange rate forecast for their hedging decisions, short-term financing decisions, short-term investment decisions, capital budgeting decisions, अर्निंग असेसमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस. देखिए कितनी डिफरेंट आपको मैंने रीजंस बताई हैं कि व्हाई डू एमएनसीज नीड टू एक्सचेंज रेट फोरकास्ट, व्हाई डू दे फोरकास्ट, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द नीड ऑफ द एमएनसीज. नंबर 1 इज फॉर द हेजिंग डिसीजंस. व्हाट इज मेंट बाय अ हेज? हेजिंग एंड स्पेकुलेशन में मैंने आपको डिफरेंस बताया था.
आप बता सकते हैं? वेरी गुड। स्पेकुलेशन से मतलब यह है कि यू आर प्लेइंग विद दी प्राइस डिफरेंसेस। आप प्राइस डिफरेंसेस से प्ले करके यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट। हेजिंग से मतलब यह है कि यू आर जस्ट गोइंग टू लॉक इन द प्राइस for a particular period of time, so that you are not being affected by the adverse movement of the exchange rate. अच्छा, फोरकास्टिंग नहीं होगी आज से 3 महीने के बाद क्या होने जा रहा है, तो हमें उस वक्त हम ज्यादा बेटर पोजीशन में होंगे उसको फोरकास्ट करने में, जब हमें ये पता होगा कि एक्सचेंज रेट का पैटर्न क्या है। लेकिन अगर आपको आने वाले वक्त में पता होगा कि एक्सचेंज रेट इज गोइंग टू बी फ्लक्चुएटेड, ओनली देन यू आर गोइंग टू हेज इट। ठीक है ना, मतलब उसकी बेस लाइन क्या है कि वी आर एक्सपेक्टिंग एक्सचेंज रेट इज गोइंग टू बी चेंज्ड इन फ्यूचर। तो अगर एक्सचेंज रेट चेंज होने जा रहा है फ्यूचर के अंदर, तो तभी आप उसको हेज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेजिंग से जो पहले आपको जरूरत है वो है फोरकास्टिंग की। समझ आ रही है बात? यानी हेजिंग तो बहुत बाद में आएगा ना, उससे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वेदर यू रियली नीड टू हैव दिस हेजिंग टू बी डन और नॉट। तो अगर आपको हेजिंग की जरूरत होगी तो ओनली देन, अगर आपको हेजिंग की जरूरत है तो वो किस बेसिस के ऊपर होगी, जब ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फोरकास्टिंग दैट यू हैव डन। फोरकास्ट करेंगे एक्सचेंज रेट तो तभी कह सकेंगे कि हेजिंग की जरूरत है या नहीं है। समझ आ रही ना बात? फोरकास्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने ये फोरकास्ट किया कि जो रुपये की करेंसी है वो इन एक्सचेंज ऑफ द डॉलर करेंसी दैट इज गोइंग टू डेप्रिशिएट इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, या आपने फोरकास्ट किया तो उसकी बेसिस के ऊपर आप ये कह रहे हैं ना। तो आप और फिर आप उसकी फिर उसके बाद आप डिसीजन करेंगे कि हाउ टू एलिमिनेट दिस काइंड ऑफ अ रिस्क, और हम इसको किस तरह से हेजिंग के थ्रू ये करें या ना करें या वट एवर। इज दैट क्लियर? एक्सचेंज रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। फोरकास्टिंग ऑफ एक्सचेंज रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MNCs when they are taking the hedging decisions. Hedging decisions are based, अगर आप इसको दूसरे लफ्जों में कहें तो hedging decisions are based on the forecasting of the exchange rate. अगर exchange rate की forecasting है तो उसी की बेसिस के ऊपर आप hedging करेंगे। Number 2 is the short term financing decisions. Okay, what are the short term financing decisions? बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर अगर आप देखें तो वी हैव करंट लायबिलिटीज, और उसके नीचे जो हमारे पास सेक्शन है दैट इज द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड इक्विटी सेक्शन। अब जो हमारे पास करंट लायबिलिटीज वाला सेक्शन है उसके अंदर वी हैव द अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल एटसेट्रा, और यहीं से हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं। ये जो हमारा बैलेंस शीट का ये पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस वाला पार्ट। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में हमारे पास क्या कुछ आ जाता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में हमारे पास वी हैव द अकाउंट्स पेबल, वी हैव द नोट्स पेबल एटसेट्रा। अब उसमें ये होगा कि हमारे पास जो हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं दे आर अगेन MNCs नीड द एक्सचेंज रेट फोरकास्ट फॉर देयर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस वो बेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग। एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग की बेसिस पे ही दे विल बी एबल टू मेक दीज short-term financing decisions, that whether they should go for these short-term financing decisions or not. आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। Westbury company considers borrowing Japanese yen to finance its US operations because the yen has a low interest rate. If the yen depreciates against the US dollar over the financing period, the firm can pay back the loan with fewer dollars when converting these dollars in exchange for the amount owed in yen. The decision of whether to finance with yen or dollar is dependent on a forecast of the future value of the yen. समझ आ रहा है? उन दोनों ने अगर चूज करना है कि that whether to finance with yen or dollar, it is going to be dependent on the forecast of the future value of the yen. Future value of the yen पे depend कर रहा है कि whether they should go for it or not. So similarly, another company has excess cash and consider depositing cash into a British bank account. If the British pound appreciates against the dollar by the end of the deposit period, when pounds will be withdrawn and exchanged for the US dollars, more dollars will be received. Thus the firm can use forecast of the pounds exchange rate when determining whether to invest in the short-term cash in the British account और दी US अकाउंट। तो हम इन फोरकास्टिंग से
हम डिसाइड करते हैं कि इन विच करेंसी वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट, हमें किस करेंसी में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट होगा और किसकी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा है, किस पर्टिकुलर फ्यूचर वैल्यू की करेंसी की फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा है अगर हम उसके अंदर इन्वेस्ट करें. सो द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, exchange rate forecasting. Similarly, the short-term investment decisions are also based on these forecasting of the exchange rate. Short-term investment decisions are basically linked up with cash, जो आपकी marketable securities investments हैं, receivables, inventory. These are your short-term investment decisions. Again, they are going to be influenced by the exchange rate. अगर आप ये देखें कि आपकी exchange rate fluctuations बहुत ज़्यादा हैं, तो perhaps you would like, अगर depreciate होने जा रहा है तो again you would like to avoid the investment in that particular currency. और वो अगर appreciate होने जा रहा है तो particularly you are going to you would like to invest more in that particular security. Then are the capital budgeting decisions. Capital budgeting decisions. Dear students, capital budgeting students जो decisions हैं वो हमारे long term investment decisions हैं जिसको हम 5 साल या उससे ज़्यादा के अरसे के लिए करते हैं और जिसके लिए हमने different techniques पढ़ी हुई हैं capital budgeting की, value over doing the financial management, जिसके अंदर we have got the NPV, we have profitability index, we have the payback period, discounted payback period, IRR, etc. So these are the different types of the capital budgeting techniques that we have studied. अब ये जो आपकी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है और कौन से प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अगेन दे आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दी फोरकास्टिंग ऑफ द एक्सचेंज रेट. देखें ये बहुत ज़्यादा डिट्रीमेंटल है कि अगर आपकी एक सब्सिडरी है वो किसी और कंट्री में काम कर रही है आपकी एमएनसी की, तो वहाँ पे अगर आपने कोई कैपिटल बजटिंग डिसीजन करना है तो आपके कैश फ्लोज बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे विद योर एक्सचेंज रेट. ओके, द फर्म्स आर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट डिसीजंस होते हैं. एक मैं आपको यहाँ से एग्जांपल पढ़ के बताती हूँ. When an MNC's parent assesses whether to invest funds in a foreign project, the firm takes into account the project may periodically require the exchange of currencies. The capital budgeting analysis can be completed only when all estimated cash flows are measured in the parent's local currency. देखें जो capital budgeting decisions हैं basically they are going to be taken at the MNC headquarter. जो आपकी parent company है, जो local आपकी company है, उस currency local currency के अंदर आप सारे decisions करेंगे. तो you have to see के उस जहाँ पे आप subsidiary open करने जा रहे हैं उस currency का क्या pattern है as compared to your ऑन होम करेंसी पैटर्न और उसकी फ्लक्चुएशंस किस तरह से इफेक्ट करेंगी आपके कैश फ्लोज को. फॉर एग्जांपल, अ कंपनी वांट्स टू डिटरमिन वेदर टू एस्टैब्लिश अ सब्सिडरी इन थाईलैंड. फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूज्ड इन द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस विल बी डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर एक्सचेंज रेट ऑफ द थाईलैंड्स करेंसी अगेंस्ट द डॉलर. देखिए मैं आपको कह रही हूँ कि इन दो है ना, एक आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पे आपकी एमएनसी का हेडक्वार्टर है, दूसरी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी दैट इज योर सब्सिडरी, जो आपकी कंपनी है जो आप किसी और जगह पे आप उसकी सब्सिडरी ओपन करना चाह रहे हो. इन दोनों 2 डिफरेंट लोकेशंस की जो करेंसी है उनका जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन पैटर्न है दैट रियली मैटर्स. सो दिस डिपेंडेंसी कैन बी ड्यू टू फ्यूचर इनफ्लोज denominated in baht that will require conversion to dollar or the influence of the exchange rate on the demand for the subsidiaries product. Accurate forecast of the currency values will improve the estimates of the cash flows and therefore enhance the MNC's decision making. तो इसलिए इस तरह से ये हमारा जो है वो decision making process हमारा effect होता है just because of the capital decisions they are being affected by the forecasting exchange rates. Then is the earning assessments. Earning assessments are very very important. जो multinational firms हैं, companies हैं, they are doing it all just for the sake of making earnings and earning profits. अब उसके लिए what is the rationale, what is the relationship of forecasting those earnings assessment. Again the forecasting of exchange rate is very very important in earning assessment. अगर आपको ये पता चल जाए कि ये हमारा जो exchange rate fluctuation है that is going to be consistent, तो then we can do the earning assessment beforehand. हमें किसी प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न मिलने जा रहा है हम
बेसिकली एक्सचेंज रेट की फोरकास्टिंग से उसको एडजस्ट कर लेंगे कि यस इट इज प्रेडिक्टेड दैट एक्सचेंज रेट इज गोइंग टू बी दिस वन, दिस मच, उसकी फ्लक्चुएशन इस रेंज में होगी एंड वी आर गोइंग टू अर्न दिस मच। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से रिलेट करती हूँ। जैसे आप कहीं पे ना फ्लाई करते हैं, बाय एयर जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो आपको जो फ्लाइट का जो कैप्टन है, जब आप जहाज में बैठते हैं, वो आपको पहले से बता देता है कि मौसम की क्या सूरत हाल है, मौसम खराब है, रास्ते में कहाँ कहीं पे बादल हैं नहीं है, क्या फ्लाइट स्मूथ होगी या नहीं होगी, इस तरह की चीजें। इसी तरह से जब आप अपना कोई प्रोजेक्ट किसी और कंट्री में करने जा रहे हैं, तो फोरकास्टिंग जो आपकी है एक्सचेंज रेट की, दैट जस्ट प्लेज लाइक अ वेदर कंडीशन और जस्ट एज अ फैक्टर दैट कैन influence your earnings. So earning assessment is based on all this कि आपकी जो forecasting of exchange rate है वो कैसा है और उसका pattern कितना consistent है, and also the long term financing decision very much related. long term financing decisions जो आप अपना stocks में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमारे पास इंटरनेशनल स्टॉक एंड बॉन्ड्स वाला जब मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे आप चूज करेंगे अमंग डिफरेंट बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर द फाइनेंसिंग डिसीजन। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन इज बेस्ड ऑन द फोरकास्टिंग ऑफ द एक्सचेंज रेट दैट आर प्रिवेलिंग इन द मार्केट। और फोरकास्टिंग उसकी आप करेंगे तो तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या यूएस के बॉन्ड्स ले लूं मैं, या चाइनीज बॉन्ड्स ले लूं, या मैं जो यूके बेस्ड बॉन्ड्स ले लूं, या मैं रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ले लूं, मैं क्या ले लूं। वो सब बेस करेगा ऑन द फोरकास्टिंग ऑफ द एक्सचेंज रेट के एक्सचेंज रेट की फोरकास्टिंग से आपको पता चल जाएगा कि एक्सचेंज जो ये एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन के बारे में, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो किस हद तक एडवर्सली इफेक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट। आप ये समझ लें कि एक्सचेंज रेट जस्ट प्लेज एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन जस्ट प्लेज एज अ फैक्टर दैट कैन इन्फ्लुएंस योर अर्निंग्स एंड योर प्रॉफिट्स एंड योर कैश फ्लोज। अब आप इसको फोरकास्ट अगर पहले कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यू विल बी बेटर एबल टू जज कि आपके प्रॉफिट्स की ट्रू पोजीशन क्या होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप इसको एज अ फैक्टर स्टडी करें कि वेदर this factor is going to contribute towards the success of our project or not. तो ये this is very very important. तो dear students, अभी मैंने आपको क्या बताया, मुश्किल तो नहीं लग रहा? No, it's very easy. Yes, we were talking about the MNCs need exchange rate forecast for their number 1 hedging decisions, number 2 short term financing decisions, number 3 short term investment decision, right hand side financing decision, left hand side investment decision. The short term financing decisions and the short term investment decisions. Then we have the capital budgeting decisions, earning assessments and long term financing decisions. Corporate motives for forecasting exchange rates. Forecasting exchange rates, ये जो अभी हमने चीजें पढ़ी हैं, that we are going to put it in the table. Forecasting exchange rates leads to number 1, decide whether to hedge foreign currency cash flows. Number 1, to decide whether to hedge foreign currency cash flows. जो हमारे cash flows आ रहे हैं, क्या उनको हम वाकई hedge करें, क्या उसकी जरूरत है। Exchange rate fluctuations, एक जो उसकी support है वो ये है कि अगर तो exchange rate fluctuations बहुत ज्यादा हैं तो then we would probably need to hedge our foreign currency cash flows. So we are going to decide that whether to hedge foreign currency cash flows or not. Number 2 is decide whether to invest in foreign projects. क्या हम foreign projects में invest करें? That is again going to be based on forecasting the exchange rate of that particular country जिसकी जहाँ पे हम invest करना चाहते हैं. Number 3 is decide whether foreign subsidiaries should remit earnings. Number 3 is to decide whether foreign subsidiaries should remit earnings. क्या for again that is based on the forecasting exchange rate कि foreign subsidiaries जो हैं वो earnings remit करें या नहीं करें. And number 4 is decide whether to obtain financing in foreign currencies. और हमने ये भी देखना है कि अगर हम foreign currencies से
के से फाइनेंसिंग लें तो क्या हमें ऐसा तो नहीं है कि एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन से हम ज्यादा इफेक्ट होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कोई सब्सिडरी ओपन करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज इन सिंगापुर यू वांट टू ओपन अप एन सब्सिडरी, और आप इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि बजाय इसके कि आप यहाँ से अपना फाइनेंसिंग ले जाएं, इट्स बेटर कि आप सिंगापुर से ही अपनी फाइनेंसिंग रेज कर लें, वहीं के डेट इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर लें इन ऑर्डर टू रेज फाइनेंसिंग। लेकिन बिफोर यू डू दैट आप यू हैव टू सी कि एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग क्या है। क्या एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग ऐसी तो नहीं है कि अगर मैं सिंगापुर में जाके डेट लूं तो वो मुझे मेरा जो कैश फ्लोज हैं दैट आर गोइंग टू बी इफेक्टेड वेरी एडवर्सली, वहां पे जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो वीक होने जा रही है। या फिर ये कि अगर मैं अपने होम कंट्री से ले जाऊं तो मेरे होम कंट्री में क्या सिचुएशन है, विच सिचुएशन इज बेटर, क्या मैं अपने होम कंट्री से लूं, इसकी एक्सचेंज रेट ज्यादा स्टेबल है, या मैं फॉरेन कंट्री से जाके लूं उसकी एक्सचेंज रेट ज्यादा स्टेबल है, कहाँ पे कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रेट मुझे लो मार्कअप पे करना पड़ेगा। ये सब फैक्टर्स आप देखते हुए देन यू आर गोइंग टू डिसाइड कि कहाँ से आपने अपना फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट चूज करना है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज अबाउट forecasting exchange rate. Number 1 about the hedging, whether to hedge. Number 2 is whether to invest. Number 3 is whether to remit earnings, and number 4 is whether obtain financing in foreign currencies or not. अच्छा जी, ये जो ऊपर वाले 3 फैक्टर्स हैं that is going to increase your cash flows, that is whether to hedge foreign currency cash flows, whether you are going to invest in foreign projects, and whether you are going to decide that you should remit earnings or not. It will lead to the increase in the dollars cash flow. आपने अगर forecast कर लिया और आपने इस basis के ऊपर forecast किया कि आपने hedge करना या नहीं करना, जो भी आपका decision होगा, yes or no, ये भी yes or no, ये भी yes or no, it is going to increase your cash flows. It is going to increase your cash flows. And number 4 is whether to obtain financing in the foreign currency. अगर आपने decide कर लिया yes or no whatever, it is going to decrease the cost of capital. What is meant by the cost of capital? Cost of capital, WACC, is equal to cost of debt plus cost of preferred stock plus cost of common stock. WACC stands for, यहाँ लिखती हूँ आपके लिए, weighted average cost of capital. So weighted average cost of capital is basically the cost of debt plus cost of preferred stock plus the cost of common stock. The weighted average of cost of debt, cost of preferred stock and cost of common stock. इनकी क्या क्या परसेंटेज है? लेट्स से इसकी परसेंटेज है 0.2%, 20% मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट, इसकी परसेंटेज लेट्स से हम कहते हैं 50% है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक प्लस मल्टीप्लाइड बाय कितने बाकी रह गए 30%. सो 30% इज फ्रॉम दी कॉमन स्टॉक. इसका जो टोटल रिटर्न जो आ जाएगा वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेट्स से इट इज 16%. लेकिन अगर हम उसको फाइनेंसिंग लेते हैं फ्रॉम इन फॉरेन करेंसीज तो क्या वो 13% है? अगर वो 13% है तो देन वी वुड लाइक टू गो. हमारा जो बेसिक पर्पस है वो ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करना. देखें स्टूडेंट्स, आम जिंदगी में भी यही होता है ना कि अगर आपको कीपिंग रेस्ट ऑफ ऑल दी अदर थिंग्स कांस्टेंट, अगर आपको कोई चीज सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर आपको चीपर प्राइस में मिल रहा है तो क्या आप वो प्रेफर करेंगे या अगर आपको कोई हायर प्राइस में मिल रहा है वो प्रेफर करेंगे? डेफिनेटली एज अ ह्यूमन बीइंग नेचुरली वी वुड लाइक टू हैव दोज प्रोडक्ट्स विच आर इक्वली एफिशिएंट बट देयर इज अ प्राइस एडवांटेज. तो हम ऐसा ही प्रोडक्ट को लेने की कोशिश करेंगे जो जिसकी कॉस्ट कम है. ऐसी बात है ना. तो लोन में या जब आप फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं तो वहां पे भी ऐसी सिचुएशन होती है. जब आप बिजनेस में जाते हो आप ऐसी जगह से फाइनेंस करेंगे अपने बिजनेस को जहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एट इट्स मिनिमम. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को
कैलकुलेट कर लेंगे थ्रू वैग, एंड देन यू वुड कैलकुलेट कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ पे लोअर है। और ये जो आपका डिसीजन है, व्हेन यू आर गोइंग टू फोरकास्ट द एक्सचेंज रेट, it is going to help you to decide about whether to obtain financing in foreign currencies or not. और अगर आपने फॉरेन करेंसीज से किया तो क्या आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी? अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी तो यस यू कैन मूव ऑन। ओके, तो आप अपने डिसीजन को आगे जारी रख सकते हैं। सो फाइनली इट इज गोइंग टू इनहांस द वैल्यू ऑफ द फर्म। अच्छा देखें, हमने एक बड़ा सिंपल सा रिलेशनशिप बनाया कि फोरकास्टिंग एक्सचेंज रेट्स is going to enhance the firm value. So forecasting exchange rates leads to enhance firm value. यानी कि हमारा जो फोरकास्टिंग एक्सचेंज रेट्स है, इवेंचुअली अल्टीमेटली इट एंड्स अप टू इंक्रीज द फर्म्स वैल्यू। सो फोरकास्टिंग एक्सचेंज रेट्स लीड्स टू इनहांस द फर्म वैल्यू। फर्म की वैल्यू इनहांस हो जाएगी। और वैल्यू इनहांस क्यों होगी? क्योंकि उसके कैश फ्लो ज्यादा हो गए हैं, नंबर 1, एंड नंबर 2 इज कि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो गई है। इज दैट क्लियर? देखें, वैल्यू इनहांस करने से मतलब यह है कि आप कम रिसोर्सेज से यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट और द बेनिफिट। सो कम कैश फ्लो से यू आर गोइंग टू हैव द मोर, लाइक आपके कैश फ्लो ज्यादा हो गए हैं और कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से यू आर जनरेटिंग मोर वैल्यू ऑफ योर फर्म। सो द इंक्रीज्ड डॉलर कैश फ्लोज and decreased cost of capital will lead to the increased value of the firm. So this is what the corporate motive is. अगर हम इसको स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कॉर्पोरेशन के हिसाब से देखें तो फोरकास्टिंग एक्सचेंज रेट एज अ बिजनेसमैन, फोरकास्टिंग एक्सचेंज रेट विल ऑलवेज लीड टू इंक्रीज और एनहांस द फर्म्स वैल्यू। दैट इज आवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारा मिशन होता है, जो हम अपनी कंपनी का मिशन बनाते हैं, दैट वी वांट टू एनहांस द फर्म्स वैल्यू। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन द लोकल ऑर्गेनाइजेशंस आजकल के थ्रोट कटिंग कंपटीशन में जो सबसे ज्यादा चीज करती है, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है या इंपॉर्टेंस है, दैट इज हाउ यू कुड एनहांस द वैल्यू ऑफ योर फर्म। तो फोरकास्टिंग एक्सचेंज रेट is one of the forecasting exchange rate might be one of the steps to increase the value of the firm. Now we are coming to the second objective of this lecture, that is about forecasting techniques. There are numerous methods available for forecasting exchange rates and they can be grouped into 4 general groups. Number 1 is technical forecasting. Number 2 is fundamental forecasting. Number 3 is market based forecasting, and number 4 is mixed forecasting. So these are the 4 different types of forecasting. Number 1 technical, number 2 fundamental, number 3 is market based, and number 4 is mixed. और mixed जो है वो हम सारी forecasting techniques को मिला के जो हम forecasting method adopt करेंगे, that is called the mixed one. First of all we come to the technical forecasting. Technical forecasting involves the use of historical data to predict future value. अच्छा students, सबसे जो easiest way होता है that is on the basis of the historical data to predict anything. हम historical data को बहुत ज़्यादा use करते हैं in order to predict the future. हमारा हमेशा जो future होता है that is what we have experienced in the past. अब जैसे for example आपने ये experience किया, अगर हम individual levels की बात करते हैं तो human resources के हवाले से अगर आपने ये देखा कि किसी एम्प्लॉय का पैटर्न ये है कि वो बहुत अच्छा वर्कर है, ही इज वेरी रेगुलर, वेरी पंक्चुअल, ऑलवेज मीट्स द डेडलाइन, इज अ वेरी मोटिवेटेड काइंड ऑफ अ वर्कर, और उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो यू कैन प्रेडिक्ट कि उसकी फ्यूचर में परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। समझ आ रही है ना? लेकिन अगर आप ये देख लें कि अगर हमारी जो पास्ट की परफॉर्मेंस है, जो हिस्टोरिकल डाटा है, वो जो सपोर्ट नहीं कर रहा कि वेदर इट इज गोइंग टू बी गुड, तो आप यही अज्यूम करेंगे कि इसने आगे भी यही करना है। लाइक देखें, जिस तरह स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब वो छोटी क्लासेस में होते हैं, अर्ली स्कूलिंग वगैरह में होते हैं, अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पेरेंट्स ये प्रेडिक्ट करते हैं
कि उनका जो बच्चा है वो बहुत आगे जाएगा, बहुत पढ़ लिख के अच्छा बनेगा एटसेट्रा, लेकिन अगर वो शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा ना हो तो उनकी जो फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट है दैट इज इंटायरली डिफरेंट। कहेंगे ये तो इसने पढ़ना छढ़ना नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ रहा है ना? तो हिस्टोरिकल डाटा इट मैटर्स अ लॉट। आई एम श्योर आपको मेरी बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही है। हिस्टोरिकल डाटा ऑफ अ कंपनी और हिस्टोरिकल डाटा ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज रेट, उसकी बेसिस के ऊपर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर को। इसी तरह हम कंपनीज की परफॉर्मेंस को स्टडी कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर पास्ट परफॉर्मेंस। हम ये देखें कि जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो प्रीवियस ईयर में अच्छी नहीं हुई और वो पिछले लगातार 4-5 साल से वो डिक्लाइन की तरफ ही जा रही है, तो आगे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी? यू कांट फोरकास्ट दैट कि अगर पास्ट के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो अनलेस एंड अनटिल के कोई मेजर ब्रेक थ्रू आ गया, कोई ऐसी इन्वेंशन आ गई है, कोई ऐसी चेंज आ गई है जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ी चेंज आएगी, जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका कंपनी की परफॉर्मेंस एकदम से बूस्ट करेगी। इसी तरह से जो फोरकास्टिंग टेक्निक्स हैं एक्सचेंज रेट की, उसमें जो टेक्निकल फोरकास्टिंग है दैट इज बेस्ड ऑन दी टाइम सीरीज मॉडल्स। हम टाइम सीरीज मॉडल्स की मदद से, हिस्टोरिकल डाटा की बेस की मदद से we can predict that whether we are going to perform good in the future or not. This is called the technical forecasting. Speculators may find the models useful for predicting day-to-day movements. अब जो speculators हैं वो भी इसी डाटा को यूज करते हैं for predicting the even day-to-day movements. Speculators ने भी इन्हीं मॉडल्स को यूज किया है in order to predict the day-to-day movements. However, since the models typically focus on the near future and rarely provide point of range estimate, they are of limited use to MNCs. लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे ये बताती जाऊँ कि ये जो मॉडल्स हैं ये आपको प्रिडिक्ट तो कर देंगे, लेकिन दैट इज ओनली फॉर द नियर फ्यूचर, मतलब जो मुस्तकबिल करीब में जो होने जा रहा है दैट इज गोइंग टू प्रिडिक्ट। लेकिन थोड़ा सा आगे जो इंसाइट होती है, एक पॉइंट्स और रेंज ऑफ एस्टिमेट्स, ये लिमिटेड यूज है फॉर दी एमएनसीज। उसकी वजह यह है कि एमएनसीज जो हैं जब हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर होते हैं तो वो हम एक ब्रॉड और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके एंटर होते हैं। हमारा ये नहीं है कि अगले 2-3 दिनों में क्या होगा या अगले 6 महीने में क्या होगा या अगले 1 साल में क्या होगा। वी आर लुकिंग एट दी वेरी वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि अगले 4 या 5 या 6 सालों में क्या होगा, उसके लिहाज से हम करते हैं। तो इसलिए जो टेक्निकल फोरकास्टिंग है दैट इज नॉट ऑफ वेरी मच यूज फॉर दी एमएनसीज और फॉर दी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, क्योंकि दे वांट टू लुक फॉरवर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अच्छा स्टूडेंट्स, एक मैं आपको केस पढ़ के सुनाती हूँ, आप जरा इसको सुने। हाउ ड्यूपॉन्ट्स अर्निंग्स फोरकास्ट आर बेस्ड ऑन करेंसी forecasts. Like many publicly traded companies, DuPont periodically announces its expectations of future earnings. Future earnings को वो periodic basis के ऊपर forecast करता है. Because much of its business is international, the company considers movements in the exchange rate when deriving expectation of its earnings. तो वो जब क्योंकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है तो वो अपनी जो अर्निंग्स की वो है मूवमेंट्स इन द एक्सचेंज रेट्स है, वो बहुत ज्यादा कंसर्न है अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द एक्सचेंज रेट बिकॉज दे वांट टू डिराइव देयर अर्निंग असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट. In particular, the euro's value is closely monitored because of the DuPont's major presence in the Europe. अच्छा, DuPont का ज्यादा जो है प्रेजेंस वो यूरोपियन रीजन में है, इसलिए यूरो वैल्यू उनके लिए, यूरो की वैल्यू जो है, यूरो करेंसी की जो वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी important. When the euro's value changes over a quarter, the translated earnings generated by the DuPont European subsidiaries are affected. देखें, जो एक MNC है उसका जो मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस होगा वो जिस जगह के ऊपर होगा, जिस एरिया में होगा, उस एरिया की करेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उस एरिया की करेंसी का फ्लक्चुएटिंग पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर अर्निंग्स. समझ आ रहा है ना? अब ड्यूपॉन्ट का जो है वो मेजर शेयर जो है वो यूरोप के अंदर है. यूरोप में जो करेंसी है दैट इज यूरो. अब वो यूरो करेंसी के साथ जो फ्लक्चुएशंस पैटर्न्स हैं उससे उसकी अर्निंग असेसमेंट इफेक्ट होगी, इसीलिए वो यूरो करेंसी की फोरकास्टिंग में इंटरेस्टेड है. गॉट माई पॉइंट? सो when the euro's currency value changes over a quarter, the translated earnings generated by the DuPont European subsidiaries are affected.
Thus, DuPont's forecast of its consolidated earnings require a forecast of earnings generated by subsidiaries in each country, along with the forecast of the exchange rate at which those earnings will be translated into dollar. समझ आ रहा ना? Given the uncertainty of the exchange rates and other factors that affect earnings, DuPont uses a range when forecasting its earnings. जब वो अपनी earnings को forecast करती है तो ये they use a range. कैसे? The low end allows for the possibility of a weak euro and while the high end allows the possibility of a strong euro. उन्होंने एक range set कर ली, maximum और minimum value. Like euro can go up, for example, up till 140 and it can go down up till 135. इन्हीं दो ranges के दरम्यान में वो exercise करेगा. Based on their forecasting, उन्होंने एक range या limit set कर दी. Investors attempting to value DuPont stock use the company's earning forecast to derive its expected future cash flow. Because DuPont's forecast of its consolidated earnings captures possible exchange rate movements, investors should not be surprised if a weakened euro adversely affects the DuPont earning. So they will not be surprised अगर उनकी earnings affect होंगी, क्योंकि they have truly forecasted the range of the euro currency कि वो किन दो values के दरमियान में exercise करेगी. इसलिए उनको पता है कि इस limit तक ये कम हो सकता है, इस limit तक ये ज़्यादा हो सकता है. So that is how the earning management is being done. This is also called the earning management, क्योंकि हमारा exchange rate का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, इसका बहुत ज़्यादा strong relationship है with the earnings. So we are very much interested in forecasting earnings. तो यहाँ पे जो हमने DuPont का केस पढ़ा उसमें हमने एक रेंज सेट कर दी है जिसके ऊपर हमारा जो यूरो करेंसी है वो फ्लक्चुएट करेगा. एंड नाउ वी आर एबल और यू कैन से वी आर इन अ पोजीशन टू टेल कि वेदर अर्निंग्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिवली अफेक्टेड और नेगेटिवली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. Fundamental forecasting is based on the fundamental relationship between economic variables and the exchange rates. So fundamental forecasting is based on the fundamental relationships between the economic variables and exchange rates. अच्छा students, economic variables का exchange rates के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है. There is a very strong relationship between the economic variables and the exchange rate. So the examples are the subjective assessments, quantitative measurements based on regression model and sensitivity analysis. So fundamental forecasting can be done on the basis of either the subjective assessment, fundamental forecasting जैसे कि बुनियादी सा जो ट्रेडिशनल सा मेथड है वो ये है. क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स बेस्ड ऑन द रिग्रेशन मॉडल्स, आपको पता है कि हम रिग्रेशन मॉडल्स के थ्रू भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं अबाउट द फ्यूचर, and also the sensitivity analysis. These are the different types of fundamental forecasting. Note that the use of PPP, that is purchasing power parity, to forecast future exchange rate is inadequate, since purchasing power parity may not hold and future inflation rates are also uncertain. तो आप इसको purchasing power parity के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते बिकॉज इट मे नॉट होल्ड और फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट्स आर ऑल्सो वेरी अनसर्टेन. फ्यूचर में इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, अगेन वी डू नॉट नो मच अबाउट दैट, सो वी कैन नॉट यूज दैट. Okay, let's take an example. The focus here is on only two of many factors that affect currency value. Before identifying them, consider the corporate objective is to forecast the percentage change. Suppose the corporate objective is to forecast the percentage change, that is the rate of appreciation or depreciation in the British pounds with respect to the US dollar during the next quarter. So before identifying them, आप suppose करें कि corporate objective ये है that it is to forecast the percentage change. Percentage change क्या है, rate of appreciation है या rate of depreciation है in the British pounds with respect to the US dollar during the next quarter. For simplicity, assume the firm's forecast for the British pound is dependent only on these two factors. Number one is inflation in the US and number two is income growth in the US relative to the income growth in the UK. Fundamental forecasting, in general, fundamental forecasting is limited by the uncertain timings of the impact of the factors. Number one, the need to forecast factors that have an immediate impact on the exchange rate and the omission of the factors that are not easily quantifiable. तो हमने वो factors देखने हैं which are directly affecting the exchange rates और हमने उन factors को eliminate कर देना या हमने उन factors को omit कर देना which are not easily quantifiable. Quantifiable का मतलब ये है
कि वी कैन गिव नंबर्स टू देम। हम अगर अपने फैक्टर्स को क्वांटिफाई कर सकें, उनको नंबर्स दे सकें, तो इसका मतलब ये है कि वी आर मोर इजीली एबल टू प्रिडिक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वांटिफिकेशन से मतलब ये होता है कि जैसे मैं कहती हूँ परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस क्या कहते हैं? क्या मैं कह सकती हूँ परफॉर्मेंस 1 है, 2 है, 3 है? क्या परफॉर्मेंस को हमने मेजर किया विद द हेल्प ऑफ ग्रेड्स फॉर स्टूडेंट्स। ए ग्रेड स्टूडेंट, बी ग्रेड स्टूडेंट, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है वो ए ग्रेड स्टूडेंट है। तो परफॉर्मेंस को हमने क्वांटिफाई किया। सिमिलरली एक्सचेंज रेट की फोरकास्टिंग को भी हमने क्वांटिफाई किया और उसमें कुछ फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं हमने उनको क्वांटिफाई किया, और हमने ये भी देखा कि किन फैक्टर्स को हम ऐड करें और किन फैक्टर्स को हम ओमिट करें इन ऑर्डर टू फोरकास्ट एक्यूरेटली। तो हम सिर्फ उन फैक्टर्स को लेंगे विच आर गोइंग टू गिव अस द एक्यूरेट जजमेंट। तो क्वांटिफाई करने से हमें ये फायदा होता है। चेंजेस इन द सेंसिटिविटी ऑफ द करेंसी मूवमेंट्स टू ईच अदर ओवर टाइम, और हमने ये भी चेक करना है कि ओवर टाइम जो चेंजेस इन द सेंसिटिविटी है ऑफ द करेंसी वो क्या है, एक करेंसी का दूसरे करेंसी के साथ सेंसिटिविटी कैसा है। देन इज द मार्केट बेस्ड फोरकास्टिंग। जैसे कि नाम से जाहिर है, मार्केट बेस्ड फोरकास्टिंग यूजेस मार्केट इंडिकेटर्स टू डेवलप फोरकास्ट। हमने मार्केट फैक्टर्स को ले लिया इन ऑर्डर टू डू द मार्केट बेस्ड फोरकास्टिंग। इट यूजेस द मार्केट इंडिकेटर्स। द करंट, स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स आर ऑफन यूज्ड। हम स्पॉट रेट्स को और फॉरवर्ड रेट्स को यूज करते हैं सिंस स्पेक्युलेटर्स विल इंश्योर दैट द करंट रेट्स रिफ्लेक्ट द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर एक्सचेंज रेट। अगेन जो आपके करंट रेट्स हैं दे आर द टू प्रिडिक्टर्स ऑफ योर फ्यूचर एक्सचेंज रेट। तो हमने ये देखना है कि जो करंट और दी स्पॉट और द फॉरवर्ड रेट्स हैं विच आर ऑफन यूज्ड, क्योंकि द स्पेक्युलेटर्स आर गोइंग टू इंश्योर कि ये जो करंट रेट्स हैं दे आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट द मार्केट एक्सपेक्टेशन of the future exchange rates. For long term forecasting, the interest rates on risk free instruments can be used under condition of IRP. So हम long term forecasting के लिए we are going to use the interest rates on the risk free instruments. Then is the fourth type of the forecasting technique, that is the mixed forecasting. What is mixed forecasting? जैसे कि नाम से जाहिर है, मिक्स्ड फोरकास्टिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक। अच्छा, हम किसी एक टेक्निक के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, बल्कि वी आर गोइंग टू यूज द मल्टीपल टेक्निक्स विच आर बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू डू दिस मिक्स्ड फोरकास्टिंग टेक्निक्स। तो मिक्स्ड फोरकास्टिंग से मतलब ये है कि वी आर जस्ट नॉट डिपेंडिंग ऑन आइदर द टेक्निकल और द फंडामेंटल फोरकास्टिंग, बट वी आर यूजिंग द all techniques or perhaps 1, 2 or 3 different combinations of forecasting techniques in order to accurately measure that whether we are going on the right track or not. तो ये बहुत important होता है कि आप एक क्राइटेरिया पे इन्हिसार करने के बजाय मल्टीपल पे करें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, आपकी परफॉर्मेंस को हम सिर्फ एक पेपर के ऊपर जज नहीं करेंगे कि आपने टर्मिनल पेपर में क्या किया। वी हैव मल्टीपल ऑफ इवैल्यूएशंस। हम आपकी क्विजेस भी लेते हैं, हम आपकी असाइनमेंट्स भी लेते हैं, समटाइम्स ग्रेडेड बोर्ड भी लेते हैं, मिड टर्म भी आपका होता है, फिर फाइनल होता है, और फिर आपका एग्रीगेट बनता है कि आपका रिजल्ट क्या। तो वी आर नॉट जस्ट रिलाइंग ऑन वन टेस्ट के एक टेस्ट से हमने इवैल्यूएट कर लिया। Mixed method is always very beneficial, and that is more sophisticated and that can be trusted more easily as compared to, उसको आप trust भी ज्यादा कर सकते हो as compared to some other technique। अगर single हो तो उसको आप इतना ज्यादा rely नहीं उसके ऊपर कर सकते। The actual forecast is a weighted average of the various forecasts developed। तो actual forecast जो होती है that is going to be the weighted average of the various forecasts developed। आप different forecasts को weightage दे दें, like आप क्या लें, technical वाला बड़ा strong है तो you give it a percentage of, let's say आप क्या लें कि forecast जो technical forecasting है उसको आप कहते हैं that is very much weaker judgment, तो उसको आप दे दें 20%। फंडामेंटल को perhaps आप कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा strong है तो आप उसको 9% दे दें, तो आपका ये वेटेड एवरेज बन जाएगा। लाइक 90% आप दे रहे हैं प्रेफरेंस फंडामेंटल को और 20% आप ओनली दे रहे हैं टू दी टेक्निकल फोरकास्टिंग, एंड जो आपका फाइनल आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर एक्चुअल फोरकास्ट विच इज द वेटेड एवरेज फोरकास्ट ऑफ द वेरियस फोरकास्ट विच आर गोइंग टू बी डेवलप्ड। सो फोरकास्टिंग सर्विसेज,
The corporate needs to forecast currency values has promoted some consulting firms and investment commercial banks to offer forecasting services. अब हुआ यह है कि क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, तो अब इस करेंसी फोरकास्टिंग के लिए डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स ने या इन्वेस्टमेंट जो बैंक्स हैं उन्होंने एक सर्विसेज शुरू की हैं विच आर कॉल्ड दी फोरकास्टिंग सर्विसेज, और उनके पास ये सेल्स होते हैं फोरकास्टिंग सर्विसेज के डिपार्टमेंट है जो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं about the forecasting pattern that are going to happen or that are going to be placed in future on the basis of the careful analysis that the various experts they have made, right? One way to determine the value of the forecasting services is to compare the accuracy of its forecast to the publicly available and the free forecast. पहला जो उसका एक जो तरीका है वो ये है कि इट इज टू कंपेयर द एक्यूरेसी ऑफ इट्स फोरकास्ट। आप एक्यूरेसी को मेजर करें टू द पब्लिकली अवेलेबल एंड द फ्री फोरकास्ट। जो एक वैसे अवेलेबल फोरकास्ट है उससे आप दूसरे जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स या इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनसे कंपेयर करके देख लें। अगर वो कंपैरिजन आपको वैलिड लग रहा है, ठीक लग रहा है, देखने में लग रहा है कि इट इज गोइंग टू बी इट इज कंपैरेटेबल, तो देन यू कैन ट्रस्ट दोज फोरकास्टिंग सर्विसेज। एवेल्युएशन ऑफ द फोरकास्टिंग परफॉर्मेंस। अब आपने फोरकास्टिंग कैसे की है उसकी परफॉर्मेंस को आप एवेल्युएट करें। An MNC that forecast exchange rate should monitor its performance over time to determine whether its forecasting procedure is satisfactory or not. आपने ये भी देखना है, फोरकास्टिंग तो आपने कर ली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मेथड्स, अब आपने ये भी देखना है कि क्या ये वाकई ही एक्यूरेट फोरकास्टिंग थी, क्या ये इस फोरकास्टिंग ने हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स दिए हैं या नहीं। सो MNC दैट फोरकास्ट एक्सचेंज रेट्स शुड आल्सो मॉनिटर इट्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम टू डिटरमिन। आप परफॉर्मेंस को भी चेक करें कि क्या ये फोरकास्टिंग आपके लिए फिजिबल साबित भी हुई है या नहीं, क्या ये इस फोरकास्टिंग से आपको कोई हेल्प भी मिली है या नहीं मिली। अगर आपके लिए वो हेल्प नहीं मिली या उससे कोई हार्डली ऐसा कोई इफेक्ट आया, तो देन यू विल नॉट ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर फोरकास्टिंग टेक्निक। परहैप्स फिर आप किसी और फोरकास्टिंग टेक्निक के ऊपर मूव कर जाएंगे, क्योंकि आपने ये देखा कि जो प्रीवियसली यूज फोरकास्टिंग टेक्निक थी दैट हैज नॉट गिवन अस द रिलायबल रिजल्ट्स, या वो जो रिजल्ट्स थे दे वर नॉट वेरी मच गिवन अस the accuracy. One popular measure, the absolute forecast error as a percentage of the realized value, is defined as forecasted value minus realized value. Realized means actual value. Divided by realized value. This is going to give you the percentage difference. परसेंटेज ऑफ द रियलाइज्ड वैल्यू। परसेंटेज डिफरेंस आपको बताएगा कि फोरकास्टेड वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू से क्या डिफरेंस है। लाइक जो आपने फोरकास्ट किया था उस वैल्यू का जो ओरिजिनली जो एक्चुअली हैपन हुई है उस वैल्यू के दरमियान में कितना डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज डिफरेंस। एब्सोल्यूट फोरकास्ट एरर्स ओवर टाइम यूजिंग द फॉरवर्ड रेट एज अ फोरकास्ट फॉर द ब्रिटिश पाउंड। आपको पैटर्न नजर आ रहा है, वेरी वेरी मच फ्लक्चुएटिंग पैटर्न, और एब्सोल्यूट फोरकास्ट एरर्स नजर आ रहे हैं आपको 0.01 0.05 से लेके वी हैव 0.30 तक, और ये मैक्सिमम गया है 1980s के अंदर। सो फोरकास्ट एरर्स दे मे हैपन। MNCs आर लाइकली टू हैव मोर कॉन्फिडेंस इन देयर फोरकास्ट एज दे मेजर देयर फोरकास्ट एरर्स ओवर टाइम। अब उनको अपने फोरकास्ट, जब आप फोरकास्ट एरर अपना कैलकुलेट कर लेते हैं तो देन यू हैव मोर कॉन्फिडेंस इन यू दैट वेदर यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ और नॉट। फोरकास्ट एक्यूरेसी वेरीज अमंग करेंसी। अब ये जो फोरकास्ट की जो एक्यूरेसी है दैट अगेन वेरीज अमंग करेंसीज। अ मोर स्टेबल करेंसी कैन यूजुअली बी मोर एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। जो ज्यादा स्टेबल करेंसी है उसको प्रिडिक्ट करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू सर्टेन वोलेटाइल करेंसी, क्योंकि वोलेटाइल करेंसी है जो जिसकी फ्लक्चुएटिंग पैटर्न बहुत ज्यादा अप एंड डाउन है, उस तरह की करेंसी को फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू सम स्टेबल करेंसी। If the forecast errors are consistently positive or negative over time, then there is a bias in the forecasting procedure. अगर forecasting errors भी में भी बहुत ज्यादा positive या negatively consistent हैं over time, तो then again उसके अंदर forecasting bias exist करता है। forecasting bias से मतलब यह है कि जो आपने techniques use किए हैं, जो procedure use किए हैं, they are not up to the mark। इसका मतलब है कि उन प्रोसीजर्स के अंदर कोई गड़बड़ है या उन फोरकास्टिंग टेक्निक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके फोरकास्टिंग एरर्स का पैटर्न भी एक जैसा आ रहा है, कंसिस्टेंट आ रहा है।
समझ आ रहा ना? यानी अगर फोरकास्टिंग टेक्निक ठीक इस्तेमाल नहीं हुई तो फोरकास्टिंग एरर्स आपके कंसिस्टेंट आएंगे ओवर either towards positive or towards negative. So you have to make sure that forecasting technique that you are using, it is up to the mark and it is giving the true picture or it is giving you the true image of what you are doing or what you want to do. ये आपको पैटर्न दे रहा ग्राफ फोरकास्ट बायस ओवर टाइम फॉर द ब्रिटिश पाउंड्स. इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ थी, हमने जो फोरकास्टिंग मेजर लिया है या टेक्निक लिया है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है. Forecast bias. The following regression model can be used to test the forecast bias. Realized value is equal to alpha और ये आपके सारे coefficients हैं plus error term. Graphic evaluation of the forecast performance. This is the perfect forecast line. This is the predicted value. Y इसके ऊपर x axis के ऊपर और y axis के ऊपर we have taken the realized value. और ये जो लाइन जो बेस्ट फिट लाइन है, दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट फोरकास्ट लाइन. जो बेस्ट फिट लाइन हमारी गुजरती है रिग्रेशन मॉडल के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट फोरकास्ट लाइन. दिस इज द रीजन ऑफ द डाउनवर्ड बायस अंडर एस्टिमेशन और ये जो दूसरा है दिस इज द रीजन ऑफ अपवर्ड बायस ओवर एस्टिमेशन. ये जो पर्पल में आपको एरिया नजर आ रहा है दिस इज द अपवर्ड बायस ओवर एस्टिमेशन और ये जो आपको पिंक में एरिया नजर आ रहा है दिस इज द रीजन ऑफ द डाउनवर्ड बायस अंडर एस्टिमेशन. इफ द पॉइंट्स अपीयर ऑन द स्कैटर्ड इवनली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परफेक्ट फोरकास्ट लाइन देन द फोरकास्ट आर सेड टू बी अनबाइस्ड. अच्छा, अब पैटर्न ये कहता है कि लाइन के इर्द गिर्द, ये जो हमने पिछली स्लाइड में हम दोबारा जाते हैं, ये जो लाइन है उसके इर्द गिर्द ये जो आपका स्कैटर्ड पैटर्न है अगर वो एक जैसा है, कंसिस्टेंट है, तो देन वी कैन से कि आपकी जो फोरकास्ट है दैट इज अनबाइस्ड. नोट दैट अ मोर थॉरो असेसमेंट कैन बी कंडक्टेड बाय सेपरेटिंग द एंटायर पीरियड्स इनटू सब पीरियड्स. आप बड़े पीरियड्स को सब पीरियड्स में डिवाइड कर दें तो यू विल हैव अ मोर क्लियर असेसमेंट ऑफ दैट. दीज आर द फोरकास्ट बायस इन डिफरेंट सब पीरियड्स फॉर द ब्रिटिश पाउंड. ये हमने डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए कर लिया इसको और आप देख लें कि ये जो रिग्रेशन लाइंस हैं वो किस तरह से उनके डिफरेंट पैटर्न्स हैं. जो स्कैटर्ड पैटर्न्स हैं वो डिफरेंट हैं और जो बेस्ट फिट लाइन है वो किस तरह से पास ऑन कर रही है. ये जो आपकी स्ट्रेट लाइंस हैं दीज आर दी परफेक्ट फोरकास्ट लाइन और आपने देखना है जो आपका स्कैटर्ड पैटर्न है वो कितना उसके इर्द गिर्द अराउंड है और अगर वो कंसिस्टेंटली इर्द गिर्द उसके अराउंड है तो उसका मतलब है कि आपकी फोरकास्टिंग ठीक है, दैट इज अनबाइस्ड. So the comparison of different forecasting methods, the different forecasting methods can be evaluated graphically by visually comparing the deviations from the perfect forecast line or statistically by computing the forecast errors for all the periods. हम इसको दो तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं, either through graphically by visually comparing the deviations from the perfect forecast line, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर किया कि हमारी जो परफेक्ट रिग्रेशन लाइन है, फोरकास्ट लाइन है, उसके आसपास स्कैटर पैटर्न कैसा है और स्टैटिस्टिकली बाय कंप्यूटिंग द फोरकास्ट एरर फॉर ऑल द पीरियड्स. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. वी हैव स्टडीड अबाउट द फोरकास्टिंग ऑफ द एक्सचेंज रेट इन दिस चैप्टर. आपको डिफरेंट उसकी मैंने बेनिफिट्स बताए, रीजंस बताए कि व्हाई द फर्म्स शुड फोरकास्ट द एक्सचेंज रेट. बेसिकली दैट वाज टू एनहांस द वैल्यू ऑफ द फर्म. और डियर स्टूडेंट्स, हमने उसके साथ डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी एंड देन वी हैव कंपेयर्ड देम और उसके अंदर जो 4 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हमने पढ़ी, दीज वर द टेक्निकल, फंडामेंटल एंड मिक्स्ड वन, जो हमारी इंपॉर्टेंट थी. और फिर हमने उन सब के बेनिफिट्स पढ़े और हमने ये भी देखा कि कौन सी ज्यादा feasible हैं from the point of view of application of the MNCs. हमने उनको compare भी किया. We also talked about the forecast bias and forecast errors. We used the formula to compute it. और फिर हमने ये भी देखा कि forecast line से visually हमने जो different forecasting methods हैं उसको हमने कैसे evaluate करना है. So I hope you have enjoyed this lecture and clearly understood this. Thank you very much for your patience. Allah Hafiz. See you next time.